हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ द ओशियन वाटर, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ द ओशियन वाटर। The temperature and salinity are two important aspects of their ocean water which affect their movements. And therefore, the temperature, salinity and density of the ocean's water have a special significance in the study of circulation of the ocean's water. There is also important. The next point here are temperature of ocean waters. There is the most important point. The temperature of the surface water of the ocean varies in a much the same way that of the land surface, and this is because the insulations is responsible for their varying quantities of the heat which are received at different latitudes and at different seasons. Generally, the temperature are highly near the equator and gradually decrease to about to the poles. And the means the annual temperature of the about 27 Celsius or higher are common is a tropical seas, but there is a generally is a decreasing to about to the poles where the mean temperature of around 1.8 Celsius are found here. However, there are decrease of temperature of surface water to about there are pole of increase to about the equator is not uniformal because there is a drafting warms water from the tropical seas and maybe move into the higher latitudes or vice versa, and there give a local increase or decrease of temperature. Wellings of deep cold water also reduce is a locally there is surface temperature of tropically and subtropical sea waters. There is a most important. The high temperature of water are found in the enclosed seas in the tropical example the Red Sea. The Antarctic water are so cold that there is a surface remain permanently frozen down to a depth of several meters. In the summer, as a month, a part of the ice break off to the iceberg, which dilute their waters and lower the surface temperature of surrounding ice-free seas. There is also variation in the vertically distribution of a temperature. The temperature decreases with increasing of depth. This is because the surface of sea water are receive the large amount of insulations. Insulation as there are rays penetrate the water, there is intensity is reduced by the scatterings, reflection and diffusion. However, the rate of decrease in the temperature is not equal at all depth upon to depth of about 100 meters. The temperature of water is about the same as that of the surface. Well, it is a fall from 215 Celsius to about 2 Celsius between to the surface and depth of the 1800 meters. And the decrease between to 1800 and the 4000 meters is a form of 2 Celsius to about 1.2 Celsius. There is a most important here. Here the main process of heating the ocean's water are by the absorption of the heat from the sun, and secondly by the convection of the heat through their ocean's bottom from interior of their earth. And the cooling process are here by loss of heat to the atmospheres, and by the evaporation there is a cooling process. There is a most important. The next here is the salinity of the ocean's water. There is also important topic here. One of the most striking character of the ocean's water is its salinity or is a saltiness. And when to the speak of salinity, we have in the mind not only to the common salt or sodium chloride, but a great variety of other salt as well. There is a dominance of salt among these are the sodium chloride and the magnesium chloride with a 77.7% to 10.9% respectively. Due to the free movement of ocean's water, their position of different salt remain remarkably is a constant in all oceans and even to great depth. But the degrees of the concentration of the salt solution in the oceans is a does vary to appreciable in a different sea. There is a most important also. The salinity of the ocean water is produced by a large number of dissolved chemical compounds
A salinity is defined as the weight is a grams of a solid material left after the evaporation of 100 grams of seawater. The weight of solid material is 35 grams and it is usually very near the figure. The salinity would be so when 35 Celsius as a 35 per thousand. Salinity is expressed in this way that rather than to the percentage. In the Baltic Seas, fresh water enters in form of surrounding land and reduce the salinity to the 7%, 7 degrees, and its fall in this sea is a low of 2 Celsius. But a greater evaporation combined with the other very as a dry is a climate in the Red Sea region give to the water of the sea is a highly salinity of the 41 to the 42. In enclosed sea, which is the area of the land is dense, such as the Caspian Sea, the salinity is very high, the 8, and there are Dead Sea of the Jordan. The salinity may be a highly 25 Celsius, and variation of the salinity is a different sea and ocean is affected by the first is the rate of evaporations, the second the amount of fresh water and added by the steam and icebergs, and third here a mixing of the ocean's water. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है महासागरीय जल की विशेषताएं। देखिए ये जो महासागरीय जल की विशेषताएं हैं ये जो है महासागरीय अंतर समुद्री उच्चवाच महासागरीय जल का जो परिसंचरण के अंतर्गत है, यानी महासागरीय जल की विशेषताएं। कहते हैं अगर देखा जाए तो तापमान और लवणता महासागरीय जल के दो ऐसे गुण हैं जो विशाल जल राशियों के लिए संचरण के प्रभावित करते हैं। यानी दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ों के लिए, तापमान और लवणता। क्योंकि अगर हम समुद्र की बात कर रहे हैं तो लवणता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसके कितने टेम्परेचर है ये भी यहाँ वेरी करता है। अंत महासागरीय जल को जो है परिसंचरण के अध्ययन में महासागरीय जल के तापमान, लवणता और घनत्व का जो है विशेष महत्व रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ आता है। इसके अंतर्गत जो है हमारा पहला पॉइंट आता है महासागरीय जल का तापमान। देखिए महासागरीय जल का तापमान किस बेस पे यहाँ लिया जा सकता है। महासागरीय जल के तापमान में भी जो है स्थलीय धरातल के सामान्य विविधताएं पाई जाती है और विभिन्न अक्षांशों पर जो है विभिन्न ऋतुओं में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में विविधता जो है सूर्य ताप पर निर्भर करती है। सामान्यतः जो है विषुववर्त वृत्त के समीप जल सबसे अधिक गर्म रहता है और इसका जो है तापमान ध्रुवों की ओर क्रमशः घटता ही चला जाता है। उष्णकटिबंधीय सागरों के वार्षिक औसत तापमान लगभग जो है 27 सेल्सियस या इसके कुछ अधिक होता है, लेकिन ध्रुव की ओर यह घटता ही जाता है। ध्रुवों पर वार्षिक औसत तापमान लगभग जो है -1.8 सेल्सियस पाया जाता है, यानी माइनस में वहाँ चला जाता है, क्योंकि बहुत काफ़ी जो है बात इंपॉर्टेंट है। ध्रुवों की ओर महासागरीय जल के जो है तापमान का जो है घटना या विषुवत वृत्त की और इसकी तापमान का बढ़ना एक सामान्य नहीं रहता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सागरों से जो है गर्म जल उच्च अक्षांशों की ओर चलता रहता है अथवा इसके विपरीत भी हो सकता है और इसके फलस्वरूप समुद्री जल के स्थानीय तापमान में वृद्धि या कमी भी हो जाता है। कभी कभी ठंडा जो निम्न सतहीय जल जो है ऊपर उठने से भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय सागर के स्थायी जल के तापमान को कम कर देता है। सबसे अधिक तापमान स्थल गिरे हुए जो है उष्णकटिबंधीय सागरों में होते हैं। यानी देखा जाए तो सबसे अधिक तापमान जो होता है स्थल से गिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उदाहरण के लिए लाल सागर, अंटार्कटिका महासागर और अंटार्कटिका महासागर का जल इतना ठंडा होता है कि सैकड़ों मीटर की गहराई तक वह जो है अस्थायी रूप से जमा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ बड़े बड़े हिस्सों में जो है टूटकर हिमखंडों के रूप में आसपास के सागरों में तैरने लगती हैं। इसके फलस्वरूप जो है आसपास के उन हिमयुक्त सागरों को तटीय जल का भी तापमान घट जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ आता है। तापमान के जो ऊर्ध्वाधर वितरण में भी विविधताएं पाई जाती है और गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता भी चला जाता है और यह इसलिए होता है क्योंकि महासागरीय जल का ऊपरी भाग अधिकतम जो है सूर्य तप प्राप्त करता है। यानी ऊपरी भाग अगर देखा जाए तो काफ़ी सूर्य से जो है गर्मी प्राप्त करता है और सूर्य की किरणें जैसे जैसे अंदर प्रवेश करती है प्रकर्णीय परावर्तन तथा विसरण के कारण उसकी शक्ति घटती चली जाती है। हालांकि तापमान की यह हर्ष दर सभी गहराइयों पर एक सामान्य नहीं होती है। लगभग 100 सेल्सियस मीटर की गहराई तक जो है जल का तापमान
लगभग सतह के तापमान के बराबर ही होता है, जबकि सतह से जो है 1800 मीटर की गहराई पर तापमान जो है लगभग 15 सेल्सियस से घटकर 2 सेल्सियस तक रह जाता है। 1800 मीटर जो है मीटर से जो है 400 मीटर की गहराई पर तापमान जो है घटकर 2 सेल्सियस से 1.6 सेल्सियस तक रह जाता है, जो कि बहुत काफ़ी वेरीड करता है। यहाँ पे महासागरीय जल के गर्म होने की प्रमुख प्रक्रिया इस प्रकार से देखी जा सकती है कि सौर विकिरणों का अवशोषण ये काफ़ी करती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है महासागरीय वित्तल द्वारा ऊष्मा का संवहन भी करती है। कहते हैं महासागरीय जल के ठंडे होने की प्रमुख प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है कि समुद्री सतह से जो है ऊष्मा का विकिरण किया जाता है और जो है वशीकरण के द्वारा जो है ये भी होती है प्रक्रिया। तो ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महासागरीय जल की लवणता। देखिए महासागरीय जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? कहते हैं लवणता महासागरीय जल का एक विशेष गुण होता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि समुद्र का पानी जो होता है हमेशा नमकीन होता है, ठीक है, यानी खड़ा होता है। तो लवणता जो है इस महासागरीय जल की विशेष गुण है। जब हम लवणता की बात करते हैं तो हमारा संकेत केवल साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड से नहीं होता है, बल्कि दूसरे कई अन्य लवणों से भी होता है। इन लवणों में प्रमुख है सोडियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो महासागरीय जल में क्रमशः 77.7% एवं 10.9% पाए जाते हैं। 77.7% सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं और 10.9% जो है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। महासागरीय जल के जो है स्वतंत्र परिसंचरण के कारण इनमें विभिन्न लवणों का जो है अपेक्षिक अनुपात सभी महासागरों में और यहाँ तक कि काफ़ी गहराई पर भी लगभग स्थिर ही रहता है। लेकिन महासागरीय जल की लवणता में अलग अलग सागरों में अवश्य ही अंतर देखने को मिल जाता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो अनेक रासायनिक यौगिक जल में घुल जाने से ही महासागरीय जल में लवणता उत्पन्न होती है। कहते हैं 1000 ग्राम समुद्री जल के वशीकृत हो जाने के बाद बचे हुए ठोस पदार्थ का भार जो है ग्राम में लवणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर उस ठोस पदार्थ का भार अगर 35 ग्राम है और यह सामान्यतः इस संख्या के निकट हो जाती है तो लवणता व्यक्त किया जाएगा सिर्फ जो है 35% डिग्री से 35 प्राप्त ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में, अर्थात प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में औसतन जो है लवणता 35 ग्राम होगी। लवणता के प्रतिशत में व्यक्त न करके प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। कहते हैं वैश्विक सागर में जहाँ नदियों का ताज़ा जल सागर में गिरता है वहाँ लवणता की मात्रा 7% सिद्ध है और इसी कभी कभी 2% तक गिर भी जाता है। लेकिन वैश्वीकरण और शुष्क जलवायु के कारण लाल सागर में लवणता जो है 41 से 42% तक होती है। स्थल से घिरे हुए सागर जैसे कैल्सियम सागर और ग्रैंड मित्र सागर में लवणता बहुत ही अधिक क्रमश जो है 180% से 250% तक हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। देखा जाए तो विभिन्न सागरों एवं महासागरों में लवणता में अंतर मुख्य कारण इसी कारण से होता है कि वशीकरण की दर के कारण और नदी तथा जो है हिमखंडों के फलस्वरूप ताज़े जल की आपूर्ति के कारण, महासागरीय जलों का जो है आपस में मिलने के कारण। तो ये सारे कारण जो है इसका प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा सकता है।